हेलो फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी साइंस का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 टिश्यूज़ का थर्ड पार्ट और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसकी मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Now, complex permanent tissue data. In complex permanent tissue, more than one type of cells occurs having same origin and performing a particular function while working together. Okay, now you know that complex permanent tissues are or both two types, xylem and phloem. Firstly, I am going to explain xylem. Xylem is further divided into different types of cells because xylem composed of four different types of cells. First one is tracheids, second one is vessels, third one is xylem parenchyma, and fourth one is xylem fibers. And all the four types of cells of xylem perform different function. Students, our next topic is sclerenchyma. Sclerenchyma is mainly made up of dead cells. It consists of thick wall dead cell. Dead cells की thick wall होती है. जो इसकी सेकेंडरी वॉल होती है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिग्निन, और लिग्निन का जो मेन वर्क रहता है वो सेल वॉल को हार्डर बनाना होता है, विच मेक्स द सेल वॉल हार्डर. दिस अकर्स इन डेफिनेट लेयर्स. ये जो स्क्लेरेंकाइमा है प्रॉपरली लेयर्स वाइज रहता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, दिस लेयर जस्ट. एंड व्हाट आर देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज मेनली इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ये मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो प्लांट है स्ट्रेट खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, टूटता नहीं है. इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर सीड्स एंड नट्स. हमारे जो सीड्स पे, नट्स पे जो कवरिंग होती है वो कवरिंग मेनली स्क्लेरेंकाइमा की होती है. एंड स्क्लेरेंकाइमा क्या है? मेनली अ डेड सेल है. ठीक है, तो जस्ट इतना ही टॉपिक आपको लर्न करना है. यहाँ से हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. उससे पहले आप लर्न करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पैरेंकाइमा एंड कॉलनकाइमा. उसके बाद करेंगे कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा का डिफरेंस. एट दैट टाइम so students, we were doing chapter tissue. Our next topic is connective tissue. Now, as the name indicate, connective tissue do aids in binding, joining, connecting, packaging one tissue to another in the animal body. Our whole body internal parts are connected with the help of connective tissue, so that the whole body can function as an integrated unit. It is mainly consist of scattered living cells in a non-living gel matrix composed of carbohydrate and proteins. The matrix can be solid, for example in case of bones and cartilage, or can be fluid as in blood. Okay, so it is the most abundant tissue in the human body of the organism, because the most part of our body covered by the connective tissue. They separate the various organs of the body from each other and also form protective sheath. Okay, based upon the nature of matrix in which the cells of the connective tissues are embedded, they are classified as proper connective tissues. Okay, proper connective tissues means when matrix is soft jelly type, and fluid connective tissues when matrix is liquid. Then skeletal connective tissue when matrix is solid. Okay, now we are going to discuss each one of them one by one. This is just the definition of connective tissue. Now we will study about the connective tissue, how many types of these are and how they are related to each other. Now next is, what are the functions of blood? First is transportation. Transportation of substances such as gases, hormones, nutrients and metabolic waste between the different body parts. The waste should be removed from the body parts because they are not needed. If they exist in the body, they can act as a toxin. Okay. Next is production of antibodies and antitoxins, because there are some kind of substances which contain some kind of pathogens and which contain some kind of disease causing bacteria. So blood is playing a very good role to producing such kind of antibodies and antitoxins that can harm or that can kill that kind of bacteria which are harmful for our body. Next is clotting of blood. When you get any kind of hurt, then the blood get clots near around their heart area, just because
to save the blood in your body. Next is maintenance and regulation of body temperature. Blood is also responsible for maintaining the body temperature in a proper manner. Next is maintenance of proper osmotic concentration around the cells and tissues and organs. Proper osmotic concentration is very important for our body, because if the osmotic concentration is high, then blood pressure can be fluctuate. So these are the main functions of the blood that you have to learn. So next type of connective tissue is adipose tissue. This is a specialized tissue to store fats in its cells called adipocytes. Not adipocyted, that is adipocytes. Okay, so adipocytes are large spherical cells having fat globules present in their cytoplasm. Okay, don't get confused. What is adipocytes? These are large spherical cells having fat globules present in their cytoplasm. Their structure is same that of areolar tissue. Okay, so they occur in the body of organism. Where they occur? They occur beneath, means under the skin, under the heart, kidney cushion, under eyes, etc. So now, what is the function of adipose tissue? As the name indicates, it is a fat storage tissue. It is shock absorbing tissue. It is insulating tissue against extremely cold surrounding. That means it is helping our body to cure us properly when something done different in our environment. Then it helps our body to do everything in continuation in a proper manner. As we have already drawn this table in the full table of type of tissues, connective tissues having their 5 types: areolar, adipose, skeletal, fluid and dense regular. Okay, now we are going to discuss these all one by one. Firstly, I am going to discuss areolar tissue. Now, what is areolar tissue? It forms a packing tissue between different organs laying in the cavity body of the animals. Now, what is cavity? Skeletal. Our skeletal contain different parts in our body. So each cavity in the skeletal consists of areolar tissue. So the main function of areolar tissue is it is acting as a packing tissue. It packs the cavity with areolar tissue. It also called loose connective tissue because it is loosely filled. The matrix, now you know what is matrix. Matrix is the semi-solid part. Matrix in semi-solid form contains, which thing it contains? White collagen fiber. Collagen fiber is a type of protein. Yellow elastic fiber. Fibroblast. Fibroblast is that thing which secretes fibers. Okay, plasma cells. Macrophages. Now what is macrophages? Macrophages means which destroy microorganisms and toxic substances. Okay, now what is the function of areolar tissue? The main function of areolar tissue is joining the skin to muscle, connecting blood vessels, nerves to surrounding tissue, making a covering over nerve muscles, blood vessels, repair any mechanical stress, damage, binding body structure by filling the space inside the organ. किसी तरीके की जो चोट वगैरह लग जाती है, उन चोट को फिल करने के लिए जो मेन रोल होता है एरियोलर टिश्यू का ही होता है. ठीक है, या हमारा जो डैमेज हो हमारी बॉडी में वो मैकेनिकल डैमेज हो या फिर कोई स्ट्रेस डैमेज हो, किसी तरीके का डैमेज जो होता है उसको फिल करने का एरियोलर टिश्यू का ही रहता है. ठीक है, हमारे जितने भी कनेक्शंस हैं हमारी बॉडी में, स्किन टू मसल, मसल टू स्किन, उसके बाद नर्व्स, ब्लड वेसल से कनेक्टेड हैं, दैट ऑल कनेक्शंस आर डन बाय एरियोलर टिश्यू. So students, the next type of connective tissue is fluid connective tissues. This is a mobile connective tissue. As the name indicates, mobile means there is a movement in this type of tissue. It is also called vascular tissue. Free cells are seen in the fluid matrix which can flow easily. जो इसमें vascular tissue पाइप
टाइप टिश्यूज प्रेजेंट है। पाइप का मतलब है तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फ्लूइड कंटेन है जो कि बॉडी में मूव करती है लाइक अ ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज आर categorized into two parts. First is blood and second one is lymph. Now firstly we are going to discuss blood. Now you all know that blood is red in color, that is present in our body. So it is red color viscous tissue which flows in the entire body. Okay, the lipid matrix of the blood is called plasma. Very important one more question. It is a pale yellow colored fluid which consists of 90% water and 10% protein, hormones, inorganic ions. That means our blood maximum contain water in it. Okay, out of then when blood coagulates, a liquid separate from blood is called serum. Now what is serum? जब ब्लड में कोगुलेशन होती है तो एक लिक्विड सेपरेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं सीरम। ठीक है, जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, दे आर आरबीसी जिसको कहते हैं हम रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। 3 हमारे पार्ट्स हैं, इसकी पिक हम आपको सेंड कर दे रहे हैं, इसको आपने प्रॉपरली लर्न करना है क्या उनका वर्क है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल टिश्यू इन द एनिमल which forms a sheet of cells to make the protective covering over the animal body. Okay, so all of you having the simplest and fundamental tissue present in your body, that is epithelial tissue. The cells in epithelial tissues are closely packed to each other. Intercellular spaces are absent. Epithelial tissues rest over extracellular matrix called basement membrane, which is made up of glycoprotein and collagen fibers. That means जो epithelial tissues जो हैं वो अपनी एक शीट बना रहे हैं और वो एक लिक्विड मेम्ब्रेन पे हैं, दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। इसका मेन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का वर्क रहता है, इट जॉइन द एपिथेलियल टिश्यू थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो पूरी बॉडी में कनेक्ट कर रहे हैं, हर बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो उनकी जो कनेक्शन है एपिथेलियल टिश्यू से करवाने का वर्क जो रहता है, दैट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यूज़ मेनली प्रेजेंट कहाँ हैं हमारी बॉडी में? दे अकर्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ओवर द स्किन कवरिंग लेयर्स ऑफ एल्वियोलम ऑफ लंग्स, दैट आई विल एक्सप्लेन फर्दर व्हाट इज़ एल्वियोलम, बाद में बताते हैं आपको। एलिमेंट्री कैनाल, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। I think some things will be new for you, but I will explain later about this. What is the lining? What is alveoli? That we will discuss properly. Okay. Now, what is the main function performed by epithelial tissue? First function is it covers the body, protect it against any mechanical injury. Okay, such as effect of pathogens such as virus, bacteria. इन सबसे बचाने के लिए जो हमारा मेन है एपिथेलियल टिश्यू, ये हमको बचाता है। सेकेंड थिंग, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स बाय फॉर्मिंग अ लाइनिंग ऑफ देयर सरफेस। जो ये एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में, सच एज एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब एपिथेलियल टिश्यू इन लंग्स, एल्वियोलाई एंड हेल्प इन डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज एयर। जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एल्वियोलाई का जो मेन वर्क रहता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई ही बॉडी के हीमोग्लोबिन तक पहुंचाता है और हीमोग्लोबिन की हेल्प से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन ही ब्लड में वापस एल्वियोलाई को देती है, फिर एल्वियोलाई उसे बॉडी से रिमूव कर देता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में एपिथेलियम हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, डाइजेशन ऑफ फूड में। एपिथेलियम हेल्प करता है हीलिंग ऑफ इंजरीज ऑन द ऑर्गन्स। अगर कोई भी इंजरी आपको हो जाती है तो एपिथेलियम टिश्यू का ही वर्क रहता है कि वो आपकी बॉडी में हीलिंग का वर्क करना। सिक्रेटरी ग्लैंड्स अराइज इन एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ कैविटीज़। जितने भी एंजाइम वगैरह हमारी बॉडी में सिक्रीट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमारी डाइजेशन प्रोसेस प्रॉपरली वर्क करती है, वो सेक्रीशन हेल्प करती हैं एपिथेलियल के लाइनिंग्स। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन और रह गए इसमें जो एपिथेलियल टिश्यूज से हेल्प करते हैं
टिब्यूल्स में से जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी में एंटर हुआ होता है उसको रिमूव करें। हम खाना खाते हैं, खाने के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेस्ट है हमारी बॉडी में जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको रिमूव करने के लिए एपिथेलियल लाइनिंग जो है हेल्प करती है यूनिफेरस टिब्यूल्स को, कि वो बॉडी से जितना भी वेस्ट है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जस्ट आपको इसमें से लर्न क्या करना है, व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। आपकी बुक्स में भी काफ़ी कुछ दिया होगा, यू कैन गो थ्रू इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन so students, our next topic is protective tissue. As the name indicate, the tissue which provide protection is known as protective tissue. Protective tissues form the outermost layer around various plant parts such as stem, root, fruit, leaf, etc. to protect it against changes in the surrounding environment. कि प्रोटेक्टिव टिश्यू वो आउटरमोस्ट कवरिंग है किसी भी प्लांट पार्ट्स के, सच एज मेन इनके जो प्लांट पार्ट्स हमारे होते हैं स्टेम्स, रूट, फ्रूट, लीफ, इनकी आउटर कवरिंग जो होती है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की होती है, जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को बचाने के लिए प्लांट्स को प्रोटेक्टिव टिश्यू अपना वर्क करते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टिव टिश्यू के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द सेल्स, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटर सेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, सेल का जो शेप है वो इलोंगेटेड होता है, लंबाई में रहता है, एंड कवर्ड विथ प्रोटीन। इसमें स्टोमेटल पोर्स दिखाई देते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉम्प्रोमाइज ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉर्क। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनके अंदर दो मेन जो चीज़ें होती हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। पहले तो एपिडर्मिस है ये प्रेजेंट होती हैं आउटर लेयर ऑफ द प्लांट। किस के आउटर लेयर में, लीफ, फ्लावर, स्टेम एंड रूट। इट इज़ वन ऑफ द थिक एंड कवर्ड विथ क्यूटिकल, काफ़ी ज़्यादा थिक रहता है और क्यूटिकल से कवर रहता है। तो और जो दूसरा पार्ट है इसका कॉर्क, व्हाट इज़ कॉर्क, जो रूट्स एंड स्टेम गेट ओल्डर विथ टाइम, पेरिफेरल टिश्यूज़ बिकम डेड एंड कॉल्ड कॉर्क। जो रूट्स और स्टेम काफ़ी टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो उन्हीं को ही कहा जाता है कॉर्क। ठीक है, ये कॉर्क की फॉर्मेशन इसलिए होती है ताकि जो आपके प्लांट में हैवी वाटर लॉस ना हो पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू में, स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन लीफ, ईच स्टोमा बाउंड बाय टू बीन शेप्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा कि इसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस एज वेल एज वाटर। These are only epidermis cells containing chloroplast, the rest being colorless. कि एपिडर्मिस सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है और बाकी सारा जो पार्ट है वो कलरलेस रहता है। स्टोमा अलाउज गैसेज एक्सचेंजेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर एस्केप थ्रू स्टोमेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू जस्ट आपको डेफिनेशन आएगी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो जो आपने इसमें जस्ट एक्सप्लेन करना है, 1, 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ एनिमल टिश्यू। यहाँ से हमारा जो प्लांट टिश्यू का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट एनिमल। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल टिश्यू। नाउ एनिमल्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ वेयर each tissue is capable of performing specific functions. Muscles, blood, nerves, lymph, etc. all tissues which are specialized to perform various functions in our body. Based on these functions, animal tissues are broadly classified in the following manner. You have to draw this flow chart properly in your notebooks. That will be able to all of you to learn this animal tissues in a proper manner, otherwise you will get confused. Okay, animal tissue, firstly animal tissue is first divided into, these are 4 types. First is epithelial tissue, second one is connective tissue, third one is muscular tissue, fourth one is nervous tissue. Okay, now these have their categories. Epithelial tissues again divided into subparts. First is squamous, second one is cuboidal, third one is columnar, fourth one is ciliated, and
Fifth one is glandula. Okay, then connective tissues divided into its subparts: areolar tissue, adipose, skeletal, fluid, dense, regular. Okay, then muscular tissue divided into its three parts: striated, non-striated, and cardiac. Okay, then this skeletal having its subparts: skeletal tissue, bone, and cartilage. Cartilage again having its subparts: hyaline, fibrous, calcified. Okay, and fluid has also its subparts, that is blood and lymph. Next is dense regular, also having its subparts, that is tendon and ligament. It is ligament, ligament. Okay, now I am going to explain each and every one topic in a brief. Firstly, you have to draw this flow chart in your notebook and you have to learn as such. Maybe I can give this flow chart in your exam to draw, to write down properly in a proper manner. So students, our next type of tissue is skeletal tissue. Now skeletal tissue occurs mainly in rigid matrix. Now you know that a skeletal means something rigid. Okay, our whole body is made up of skeletal. It is very strong thing, and it is called a supportive connective tissue because it gives support to our body. Without skeletal, we can't survive. Our body can't exist because the whole blood, whole muscles are existing in the cavity, and that cavity is known as skeletals. The living cells present in the solid matrix are in the fluid-filled leukemia or chambers embedded in the matrix. Now we will study the types of skeletal tissue. There are mainly two types of skeletal tissues. First one is bone, second one is cartilage. Now what are bones? How you can define bones? The bone, simply something strong, rigid, non-flexible skeletal tissue in which fluid-filled lacuna contain bone cells within the solid matrix. That means कि bones strong, rigid, non-flexible tissue हैं जिनके अंदर fluid filled रहता है. Okay, हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम पार्ट है वो बोन्स है, जिसके कारण हमारी बॉडी का सपोर्ट मैनर कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट मैनर में प्रॉपरली बेस्ड है. Without skeletals, without bones, our different organs in our body can't connect it properly. Even we can say that our muscles can't properly move if there are no bones. Now what is cartilage? Cartilage is also a type of skeletal tissue. Unlike bones, cartilage is a हार्ड येट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू. हार्ड तो है बट फ्लेक्सिबल है, ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. द फ्लूइड लेक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. इसमें फ्लूइड फील्ड लेक्यूना प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे टिश्यूज़ प्रेजेंट है जिसमें फ्लूइड फील्ड है, इस जो कि फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं. द कार्टिलेज टिश्यू इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम विच इज़ एन इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. एक और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है, एक लेयर जिसकी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ पेरिकॉन्ड्रियम. The matrix is not supplied by any blood vessels or nerves. जो हमारा पेरिकॉन्ड्रियम है, ना तो इसमें कोई ब्लड वेसल है, ना ही कोई नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, एब्जॉर्ब शॉक्स और स्ट्रेसेस. कि लॉन्ग बोन्स जितने भी होती हैं वहाँ पे हमारे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. ये इनका मेन जो वर्क होता है, बाई चांस आपको कहीं चोट लग जाती है तो वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, आपको हार्ट कम फील हो. It also occurs in the walls of respiratory tracts, intervertebral disc, in ear pinna, in the end of nose, etc. It provides flexibility to the body parts and it can be compressed. इसको compress किया जा सकता है, इसलिए हमारी बॉडी को flexibility provide करता है. Now you will learn the difference between bones and cartilage. So students, our next topic is the next connective tissue, that is dense regular tissue. ये वो टिश्यू होते हैं जो सेल के बीच में टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, जो फाइबर्स हमारे दो सेल के बीच में फाइबर्स टाइटली पैक्ड होते हैं उनको हम कहते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू. ठीक है, अब
फॉर्म्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। क्लोजली पैक्ड सेल्स का मतलब क्या हो गया कि दो सेल्स हैं, ये क्लोजली पैक्ड है, अंदर से फाइबर्स फिल हैं इनके अंदर। एंड इलास्टिक, इलास्टिसिटी है इसके अंदर। नेक्स्ट इनकी टाइप्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स मीन्स दोज टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू बोन, वो टिश्यू जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में वो टिश्यूज जो बोन, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं, उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज लिगामेंट, तो आपको पता होना चाहिए। जो टिश्यू मसल्स को बोन से कनेक्ट करे वो टेंडन है, जो बोन से बोन कनेक्ट करे वो क्या है, लिगामेंट्स है। ठीक है, नाउ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। टेंडन्स वाइट कलर के फाइबर्स हैं मेड अप ऑफ कोलेजन। अब कोलेजन का मतलब क्या है, कोलेजन refers to a family of protein that are primarily structure component of connective tissue such as skin and cartilage। ये प्रोटीन्स ही होते हैं मेनली, जो इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है स्किन में, कार्टिलेज में, वो टेंडन्स का ही होता है। सो these are mainly those proteins which form the structural component in connective tissue such as skin and cartilage। उसको कोलेजन कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिए कि कोलेजन का मतलब एक टाइप की प्रोटीन जो हमारी बॉडी में सारे प्रोटीन्स का थर्ड पार्ट है। ठीक है, कोलेजन जो होती है वो 28 टाइप्स की होती है। 9th या 10th में कोलेजन के बारे में कुछ नहीं आएगा। अगर 11th में या बायोलॉजी लेते हो देन यू विल स्टडी ब्रीफ अबाउट इट। ओके, इट इज़ टफ इन इलास्टिक। टफ है ये, इन इलास्टिक है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स, मतलब कोलेजन फाइबर के बंडल से बना होता है। द एरियोलर टिश्यूज अकर ऑन द आउटर साइड एंड जॉइंट स्केलेटल मसल एंड बोन। अब एरियोलर टिश्यूज कौन से होते हैं, पहले तो इनका जो नेम है दैट इज नेम्ड आफ्टर एयरी अपीयरेंस ऑफ द टिश्यू। जो एरियोलर टिश्यू होते हैं ना, इनकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो उस टिश्यू के नेम को आइडेंटिफाई करती है। मतलब फ्लफी होती है वो, जैसे एयर किसी चीज़ को फिल कर देता है वैसे ही एरियोलर टिश्यू भी वेकेंट स्पेस को फिल करते होते हैं। ठीक है, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन ऑर्गन एंड कनेक्ट द स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स। जस्ट ये स्किन को अंडरलाइंग मसल से हमारे कनेक्ट करते हैं जो एरियोलर टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट लिगामेंट। लिगामेंट का मतलब क्या है, जो बोन्स को बोन से कनेक्ट करे। इट इज़ अ येलो, ये कौन से कलर का था, वाइट। इट इज़ येलो फाइब्रियस टिश्यू मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एंड फ्यू कोलेजन। इसमें क्या था, मैक्सिमम पार्ट इसमें कोलेजन था, इसमें फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है और साथ ही में कोलेजन कुछ प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है। और इसमें क्या था, ये टफ था, इनलास्टिक था, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच बाइंड्स बोन्स टुगेदर। ये इसमें बोन्स टू बोन की कनेक्शन है तो बोन्स को टुगेदर भी फिक्स रखता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, दैट्स वाई इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बेंडिंग ओवर द जॉइंट। जैसे आप मूव बेंड कर लेते हो, बेंडिंग किसके कारण हो, लिगामेंट के कारण हो रही है। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आप किसी भी हैंड को, जॉइंट्स, जहाँ भी जॉइंट्स हमारे प्रेजेंट हैं और प्रॉपरली वो बेंड हो जा रहे हैं क्योंकि लिगामेंट्स के मौजूद होने के कारण। सो दैट इज़ ऑल अबाउट, आई एम गिविंग डिफरेंस, आपको डिफरेंस लर्न करने हैं, डिफरेंस। So students, our next topic is lymph. It is also a connective tissue. So lymph न्यू वर्ड होगा आपके लिए और पेल येलो कलर का होता है। ये लिम्फ को क्लियर करने के लिए जस्ट वैसे लिम्फ तो जो 10th क्लास में आप अच्छे से स्टडी करेंगे, ब्रीफ में थोड़ा सा बस आपको बता देते हैं। जैसे आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में दो मेनली जो वेसल्स होती हैं, दैट इज़ आर्टरी एंड वीन्स। ठीक है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जस्ट इतना ही ध्यान में रखिए, 10th में पूरा ब्रीफ में आएगा आपको। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है लेकिन प्रेशर जो है वो हाई होता है। वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, उसमें जो प्रेशर होता है लो होता है। अब इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमारे दोनों आर्टरीज और वीन को जो कनेक्ट करती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरी बेड होती है यहाँ पे, और जितना भी ब्लड इसमें होता है वो इस कैपिलरीज की हेल्प से वीन्स की तरफ जाता है। ठीक है, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब ये फिल्ट्रेशन जब हो रही है ना, इस फिल्ट्रेशन के टाइम पे कुछ चीज़ें इस कैपिलरी से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसमें वो लिम्फेटिक वेसल्स में आती हैं टिश्यूज़ की हेल्प से। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें से निकलती हैं, इसमें से निकलती हैं
WBC, वाटर, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, गैसेस। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें निकलती हैं ना, ये जाके हमारे लिम्फ की फॉर्मेशन करती हैं। इसमें इसका कोई कलर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें RBC प्रेजेंट ही नहीं है। ये सारे ही कलरलेस या फिर पेल येलो कलर के होते हैं। जो पेल येलो कलर भी आता है ना, वो प्रोटीन की प्रेजेंस या अमाइनो एसिड की प्रेजेंस के कारण ही आता है। जो RBC हैं वो फिल्टर आउट नहीं हो पाते क्योंकि उनका प्रॉपर शेप है। ठीक है, सो इतनी सारी चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती हैं और ये हमारी बॉडी में एक अलग पाइप, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स मूव कर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर मूव करता है। एक होता है आर्टरी का, एक वीन का, लेकिन इन्हीं के साथ में एक और पाइप भी रहती है। उस पाइप को हम कहते हैं लिम्फेटिक पाइप, लिम्फेटिक वेसल। और उस लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ का फ्लो होता है। ठीक है, जब कई बार आपको चोट वगैरह लग जाती है, उसमें ब्लड कई बार नहीं निकलता है, जैसे खरोच लग जाती है, तो क्या खून वहाँ पे जम जाता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिम्फ। लिम्फ जो है वो क्लॉटिंग कर देता है, जिसके कारण ब्लड निकल नहीं पाता है। तो जस्ट 9th लेवल तक इतना ही ध्यान में रखिए कि लिम्फ की प्रोडक्शन जो होती है वो जब आर्टरी से वीन्स तक ब्लड का फ्लो होता है, मूवमेंट होती है, तो बीच में जो कैपिलरीज बेड है वहाँ से कुछ फिल्ट्रेशन होती है। उस फिल्ट्रेशन के टाइम पे जितनी भी चीज़ें निकलती हैं वो लिम्फ की प्रोडक्शन करती हैं। नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लीजिएगा। ओके, सो आपने लिखना क्या है? लिम्फ इज़ अ पेल येलो कलरलेस फ्लूइड टिश्यू, क्योंकि ये टिश्यू में जाके मिक्स होता है। इट इज़ अ फिल्टर्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये आपको लाइनअप समझ आ रही होगी कहाँ से फिल्टर्ड हुआ है। एंड फ्लोज थ्रू द लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ में कौन कौन सी चीज़ें कम होती हैं? एर्थ्रोसाइट्स। ब्लड का एर्थ्रोसाइट्स का मतलब है इसके अंदर कमी होती है रेड ब्लड सेल्स की, ब्लड प्लेटलेट्स में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो WBCs हैं लिम्फ में सबसे ज़्यादा होते हैं। लिम्फ का फंक्शन क्या है? टू कैरी सेक्रीशंस एंड मटेरियल्स फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड। ये जितनी भी सेक्रीशंस होती हैं और जितनी भी सेक्रीशंस होती हैं या जितने मटेरियल्स फ्लो करते हैं बॉडी में टिश्यू से लेकर ब्लड तक और फिर ब्लड से लेकर टिश्यू तक, ये उनकी मूवमेंट कराता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स ट्रैप्स द माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय दैम। माइक्रोब्स जितने बॉडी में पाए जाते हैं जो बॉडी को हार्म करते हैं, उनको ये ट्रैप कर लेता है और किल कर देता है, जो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉजेज बाय दैम। दैट्स ऑल। 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इसमें लिम्फ का नहीं समझ आया तो एक बार जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। वीडियो में बस यही समाप्त करता हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का चैप्टर आपको बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।